Greetings guys, as you know we are doing adjectives and in this video we will talk about the adjectives degrees of comparison. Topic is the adjective degree of comparison. Dear guys, as you learned about verb form, same as there are three forms of adjectives that are positive, comparative and superlative. Positive form, number 2 comparative form, number 3 superlative. Superlative form, normally we add er in comparative form and est or st in superlative form. As for example, as bold, in comparative bolder we add er, superlative boldest. Same way, if the base root or positive form has e in the end, then we use only r and st in comparative and superlative form. There are number 2. Number first, if you have only means consonant, then in the end you have to add er or est to make comparative and superlative form. Number 2, if the main form or your basic form, your positive form has e in the end, as brave, you have to add only r or st in comparative or superlative. Braver, bravest, and very simple. Number 3, if you have consonant in the end and vowel before the consonant, then the last consonant will get double. As number 3, big. As you can see, there is consonant in the end and before it there is vowel. Then in comparative and superlative, your g will get double, as bigger, bigger, and biggest. Next, if you have y in the end and consonant before the y, then your y completely vanished and it changed in ier, iest. For example, busy, you can see y in the end and consonant before y, then y will vanish or you can delete y and or either it will change in I, then you will add er and est. bus, change y in I and er, busier, and superlative busiest, busiest.
नेक्स्ट, there are some adjective which has means simple things is here. Some words have full, est, tent, gent, ing, ent. इस तरह के जो वर्ड हैं हमारे फुल, इस तरह के जो वर्ड हैं, जिन भी डिग्रीज के पीछे, जिन भी एडजेक्टिव के पीछे आपको ध्यान से सुने दोबारा फिर, फुल, कल्ट, ईस्ट और एस्ट, टेंट, जेंट, इंग, एंट, लर, इस तरह के वर्ड मिले या इस तरह की साउंड मिले, उनके साथ कंपैरेटिव फॉर्म में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट ऐड होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ब्यूटीफुल, यू कैन सी फुल, ब्यूटीफुलर नॉट, ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बनेगा. अब हमने क्या करना पड़ेगा, मोर ऐड करना पड़ेगा, MORE इन कंपैरेटिव फॉर्म, मोर ब्यूटीफुल. And in superlative, most, most beautiful. See next example, as honest, est, est. Then add more honest, most honest. Next one, gent, as intelligent. Intelligent, same as more intelligent, most intelligent. Then tent, important. Same as more important, most important. Then ing, interesting, ing. Interesting, sorry, RESTING. More interesting, most interesting. Lur, as popular, lur, more popular, most popular. I think you got it. आपको समझ आया होगा हमने डिग्री कैसे बनानी है. ये आपके डिग्रीज के रूल्स हैं. और आपके कुछ वर्ड्स होते हैं डिग्रीज में जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बिल्कुल इरेगुलर होता है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है. जैसे बहुत ही कॉमन सा वर्ड है गुड. गुड क्या करेंगे हम, गुड, बेटर, बेस्ट. क्या चलाते हैं इसकी, गुड, बेटर, बेस्ट. एक वर्ड और है आपका नाइस. नाइस की भी फॉर्म बेटर, बेस्ट चलती है. नाइस भी आपका बेटर एंड बेस्ट चलता है. यहाँ आपके 3 वर्ड्स हैं, बैड, इल एंड इविल. इन तीनों की फॉर्म्स आपकी वरस और वरस्ट चलता है. क्या चलेगा, वरस एंड वरस्ट. तो आप समझ में आ गया होगा आपको. और मच और मैनी, मच और मैनी इन दोनों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म सेम होती है. मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट. मच, सॉरी, MUCH, मच और मैनी दोनों की फॉर्म चलेंगी मोर एंड मोस्ट, MOST, मोस्ट. आगे देखिए, आपका एक वर्ड है
ओल्ड, ओल्ड, इसकी फॉर्म दो तरह से चलती हैं। एक तो आपका चलेगा कंपैरेटिव ओल्डर और दूसरा कंपैरेटिव है इसका एल्डर, और सुपरलेटिव में है इसका ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, सॉरी ELDEST। ऐसा क्यों है प्यारे बच्चों? देखिए, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग जैसे कि बिल्डिंग आदि की बात करें तो ये ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट चलती है। द ओल्डर टेम्पल, ओल्डेस्ट टेम्पल। और जब हम बूढ़े के बारे में यानी कि उम्र में बड़े के बारे में बात करते हैं तो एज की बात करें अगर हम तो एल्डर, एल्डेस्ट चलता है। आपको समझ में आया होगा। अब मैं इनको डिग्रीज को फिल करने के रूल बताती हूँ, रूल्स बताती हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैं आपके पास 3 सेंटेंसेस लिखती हूँ, उनको देख करके आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दें। नंबर 1, राम is a noble boy. Second one is Ram is nobler than Sham. Third one is Ram is the noblest boy. और noblest of all the boys, noblest of all the boys। यहाँ पर आपको इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना है। आप क्या देख रहे हैं? पहले सेंटेंस में ओनली आपकी इम्पेरेटिव फॉर्म या आपकी मेन फॉर्म आ गई है। देखिए, इम्पेरेटिव फॉर्म में आपकी या पॉजिटिव फॉर्म और इम्पेरेटिव फॉर्म आपकी एक ही बात होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में नोबल, सेकंड में नोबलर और थर्ड में नोबलेस्ट। आप ध्यान से देखेंगे, जब आपको हम थर्ड सेंटेंस से लेते हैं द, यानी कि जब आपको कोई भी डिग्री भरनी हो, यानी कि आपको एडजेक्टिव की कोई फॉर्म भरनी हो, तो आप क्या देखेंगे? ब्लैंक के बाद और पहले देखेंगे। अगर आपको ब्लैंक के जहाँ पर आपको डिग्री भरनी है उससे पहले द, THE, द ये वर्ड मिलता है तो आपको सुपरलेटिव फॉर्म फिल करनी होती है। कौन सी फॉर्म फिल करेंगे? सुपरलेटिव। और जब आपको ब्लैंक के जस्ट देन मिले, THAN, देखिए देन दो होते हैं हमारे, एक आपका THEN भी होता है बेटा, ये वाला नहीं, ओके, THEN, देन ये नहीं, THAN, देन। देन मीन होता है कंपैरिजन, अपेक्षा। तो आप कंपैरेटिव फॉर्म भरेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। द के बाद आप सुपरलेटिव फॉर्म भरते हैं, देन से पहले आप कंपैरेटिव फॉर्म भरते हैं। कोई भी डिग्री आ जाए, नोबल की बात नहीं है यहाँ पर एल्डर भी आ सकता था, राम इज एल्डर देन श्याम। और जब आपको द और देन और द इनमें से कोई भी ना मिले तो आपकी इम्पेरेटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म भी कहते हैं इसको, ये आती है। एक बात और है, कई बार आपको यानी कि इसके बाद दूसरी प्रिपोजिशन भी मिल जाती है एज टू, T और टू, आपको देन और टू कोई भी एक प्रिपोजिशन आपको यहाँ मिलेगी। सो डियर गाइस, ये थे आपके रूल्स जो आपके डिग्री फिलअप करने के बड़े ही सिंपल रूल्स हैं। अब कुछ एडजेक्टिव्स हमारे ऐसे हैं जिनका यूज बड़ा सोच समझ कर किया जाता है। मीन्स जैसे पहले हमारा क्या है, नंबर 1 सम एंड एनी। देखिए, सम मीन कुछ, एनी मीन भी कुछ या कोई। जो हमारे सम है, इन दोनों का कुछ के लिए, सम और एनी का दोनों का मीनिंग मीन्स हमारा कुछ के लिए यूज होता है, कुछ शब्द के लिए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, सम का यूज पॉजिटिव सेंस के लिए होता है
और एनी का यूज नेगेटिव सेंस के लिए। ध्यान दें, एज एग्जाम्पल, देयर आर सम गर्ल्स इन दिस क्लास, और देयर, इसी को हमारा नेगेटिव बनाए, देयर आर नॉट एनी गर्ल्स इन दिस क्लास। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सम है इसका यूज हमारा पॉजिटिव सेंस में होता है और एनी का यूज हमारा नेगेटिव सेंस में होता है। दोनों का मतलब होता है कुछ। मीन्स एनी का मतलब होता है नॉट सम, नॉट सम इज इक्वल टू एनी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ऑल एंड होल, ऑल एंड होल। ऑल मीन भी सारा, होल मीन भी सारा। जो ऑल है आपका ALL ऑल, इसका अर्थ सब होता है और होल का अर्थ भी सब होता है, सारा का सारा। जो हमारा ऑल है ये क्वांटिटी और नंबर को दर्शाता है, क्वांटिटी और नंबर को। और होल होता है जो वो कंप्लीट फॉर्म को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, she drank all the milk, यानी कि वो सारा दूध पी गई। मीन्स दूध क्या है? एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे, ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे, ये क्या शो कर रहा है? नंबर। तो हमने ऑल का यूज किया। नेक्स्ट, अब हम करेंगे द गर्ल और सी। द गर्ल की जगह पर आप सी भी यूज कर सकते हो। सी drank a whole glass of water। इसमें देखिए, इसमें क्या है? मीन्स जितना है वो सारा का सारा, जितना भी है वो सारा का सारा, कंप्लीट। इस वाक्य में आप देख रहे हैं सी ड्रैंक ऑल द मिल्क, यानी कि मिल्क की जो क्वांटिटी है उसने पी ली। एंड द गर्ल ड्रैंक ए होल ग्लास ऑफ वाटर, यानी ग्लास में जो भी था सब का सब। इसमें इस तरह से हम यहाँ पर ऑल और होल का यूज करते हैं। ईच एंड एवरी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एंड एवरी। अब ईच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ईच का प्रयोग दो के लिए होता है, टू के लिए होता है, और एवरी का प्रयोग कंप्लीट ग्रुप के लिए होता है। ईच ऑफ द टू गर्ल इज इंटेलिजेंट। ईच ऑफ द, अभी यहाँ सोचेंगे, देखिए ईच ऑफ द टू गर्ल्स, मैंने लिखा यहाँ पर प्लूरल और मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई सिंगुलर। क्यों? देखिए बेटा, जब ईच ऑफ आ जाए तो वहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। आपको ईच ऑफ वर्ड आने के बाद आपको हमेशा
प्लूरल के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती हैं। अब देखिए एवरी का प्रयोग आप कैसे करेंगे। एवरी, एवरी गर्ल शुड बी इंटेलिजेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन है, तो हमने लगाया ईच, और सबके बारे में हम कंप्लीट गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने लगाया एवरी। इसी तरह से मैनी, मैनी और मच, मैनी और मच के बारे में है। मैनी का प्रयोग हमेशा कॉमन नाउन के लिए होता है। मैनी का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? कॉमन नाउन के लिए। और मच का प्रयोग मैनी, नंबर 4, मैनी एंड मच। ध्यान दें, मैनी का यूज कॉमन नाउन के साथ इसका क्या बताने के लिए? नंबर बताने के लिए। मैनी का यूज होता है नंबर बताने के लिए, BER, और मच का यूज होता है क्वांटिटी बताने के लिए। क्वांटिटी बताने के लिए। अब एक तो हमने नंबर बताना है, एक हमने क्वांटिटी बताना है। There, for example, there are many, MANY, many boys in the park। ये जो बॉयज है उनकी क्या बता रहा है? नंबर। अब नेक्स्ट है जो आपका मच होता है, ये क्वांटिटी को बताता है। The boys are making much noise। देखिए यहाँ पर नंबर बताया, यहाँ पर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जिसको हम शोर की क्वांटिटी को, मात्रा को बता रहा है। नेक्स्ट नंबर इज फ्यू, FU, द फ्यू। फ्यू जो होता है इसका अर्थ होता है बिल्कुल कम, एंड मीन्स हार्डली एनी, बिल्कुल ही लेस मात्र, बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। क्या? फ्यू। फ्यू का मीनिंग होता है बिल्कुल नहीं के बराबर। फ्यू, देखिए फ्यू, FU एंड द फ्यू। फ्यू होता है आपका न के बराबर, और FU होता है थोड़ा सा कुछ। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये गिलास से मैंने यहाँ बनाया, इसमें एक यहाँ तक मैंने भर दिया इसको। अभी मैं इससे आप समझ जाएंगे, इसको मैंने यहाँ तक भर दिया है। और ये गिलास मैंने थर्ड बनाया, इसको मैंने यहाँ तक भर दिया है। अब ये है फ्यू। क्या है? फ्यू, FEW, फ्यू। और ये है FU। देखिए पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ है, FU। एंड दिस वन द फ्यू। समझ गए होंगे आप इस एग्जाम्पल से। मीन्स ना के बराबर फ्यू एंड FU थोड़ा सा और ज़्यादा, और द फ्यू सारा का सारा जितना भी है। इससे हमें नंबर का नॉलेज होता है, नंबर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट वन, लिटल। अभी मैं यहाँ पर मैंने ग्लास का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि ये नंबर को बताता है तो वाटर नंबर को नहीं बताता है, क्वांटिटी को बताता है। इसके लिए हम लिटल, ए लिटल, द लिटल यूज करते हैं। आप इनको फ्यू के लिए आप नंबर का यूज करें। देखिए
ये बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे 100 बच्चे हैं किसी स्कूल में, और उनमें से ओनली 1 या 2 ही बच्चे आते हैं, तो ये हो गए फ्यू। अगर 100 में से 80 के करीब बच्चे आ जाते हैं तो हो गए ए फ्यू। एंड अगर वो 100 के 100 हैं जितने भी थे, तो ये हो गया आपका द फ्यू। ठीक है, और ये है आपका, सॉरी ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई, दोबारा ध्यान दें। ये होता है आपका क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी के लिए क्या होता है आपका लिटल। इस एग्जाम्पल को आप यहाँ समझें। लिटल, लिटल, a little and the little। ये आपका है लिटल। क्या है ये? फर्स्ट रो, फर्स्ट लिटल, एंड सेकेंड वन इज a little, and third one is the little। So dear guys, I have told you as I have about adjective। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव के बारे में जितना नॉलेज मुझे था मैंने आपको दिया। आई होप यू विल गेट ऑल थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड विद दिस योर चैप्टर ऑफ एडजेक्टिव has been completed. Now revise. Thank you, have a nice day.